Dear students, contrary to Domer's growth model, solo growth model has a more optimistic approach towards the equilibrium in the national economy. Let us see how we can analyze this by using the qualitative approach, that is the phase diagram. We know about Robert Solow, who is a Nobel laureate, and he gave many economic ideas, out of which one of these is what we are studying today. Or it's based upon the Domer growth model. Basically, it's built upon that because he questioned the delicate balancing that was there, and the razor edge was the biggest hurdle in the way of regaining the macroeconomic equilibrium. So he gave this result in the form of an equation. ये equation थी that he developed, which is written here, where small k basically represents capital per worker, and the dot shows the rate of change of capital per worker, and S is the marginal propensity to save, and phi k is the function in terms of k, and then there is lambda, which is showing the growth rate of labor, and capital per worker is being multiplied with this. So Solow also included the role of labor in the model, and he took the ratio of capital and labor by using the capital per worker variable. Now, this is something that we can analyze in a qualitative way, and we shall do that. Before that, it is just a reminder कि हम जो चीज़ इस वक्त पढ़ रहे हैं उसके अंदर बेसिकली कौन सी टर्म किस चीज़ को शो कर रही है. ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की टर्म है, ये इन्वेस्टमेंट की टर्म है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल पर वर्कर है. So if I write capital per worker, then it will be more precise. Or marginal propensity to save is already there. And this is the production function जिसमें capital labor दोनों in the form of a ratio appear हो रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का एक आपस में टसल है बिकॉज माइनस साइन है. इसमें डेफिनेटली देयर बी थ्री पॉसिबिलिटीज़ कि अगर ये वाली टर्म इस टर्म के इधर बराबर हो, या उससे ग्रेटर हो, या उससे स्मॉलर हो. ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ पे टेबुलेट कर दी हैं. और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल पर वर्कर एक पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर पहली टर्म दूसरी से ग्रेटर हो, और ये इक्वल टू ज़ीरो होगी अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हों, और ये वाली टर्म नेगेटिव होगी अगर पहली वाली टर्म दूसरी टर्म से स्मॉलर हो. सो दैट इज़ बेसिक अरिथमेटिक्स जो हमें अंदाज़ा है. बट इसका जो मीनिंग है हमने ये समझना है, बिकॉज यहाँ पर इन दोनों टर्म्स की डिफरेंस की वजह से एक पॉजिटिव वैल्यू आई है. पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कि कैपिटल पर वर्कर बढ़ रहा है, और अगर वो बढ़ेगा तो वो एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे मूव करेगा, जिसे हम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कहते हैं. दैट वी विल सी इन द डायग्राम राइट आफ्टर दिस स्लाइड. और अगर ये वैल्यू ज़ीरो, इट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल ज़ीरो है, कैपिटल पर वर्कर ज़ीरो है. It means that there will be no change and there will be stability that is already at that equilibrium point, so there is no need for any change. यहाँ पर चूंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल पर वर्कर यहाँ पर कम हो रहा है जैसे जैसे वी आर मूविंग अहेड. दैट इज़ वाई जो K2 है, जो हमने एक पॉइंट चूज़ किया है, दैट विल मूव टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम. यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डोमर ग्रोथ मॉडल के बजाय जहाँ पर रेजर एज was a hurdle in the way of equilibrium, यहाँ पे movement towards the equilibrium है, और एक optimistic picture नज़र आ रही है of the overall macro economy. So investment depreciation gap हम शो कर रहे हैं. ये आपने देखा, ये investment है, ये depreciation है, और इनका gap है. और इससे investment हो सकती है, it can lead to more capital accumulation, जो आपने देखा पहले केस में हो रहा है. This causes capital to grow and remove the gap. Capital grow करता है और gap remove होता है, और हम equilibrium की तरफ move करते हैं. Investment and hence capital shall decrease if the depreciation is greater than investment. और हम ये बात कर रहे हैं दूसरी थर्ड सिचुएशन की, जहाँ पर depreciation ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, जिसकी वजह से कैपिटल में कमी वाक़ होगी. अब ये चीज़ बेहतर समझ आ सकती है इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. और इसके अंदर कैपिटल पर वर्कर हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को इकट्ठे प्लॉट किया है. डेप्रिसिएशन हमने देखा एक कांस्टेंट रेट था लैम्डा के लिहाज से. सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप. तो आपने देखा इट्स अ स्ट्रेट लाइन. वेयर एज इन्वेस्टमेंट आपने देखा था
that was a proportion of the production function. तो प्रोडक्शन फंक्शन चूँकि नॉन लीनियर है, इसीलिए इसका जो कर्व है वो इन्वेस्टमेंट का दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कर्व, और प्रोडक्शन फंक्शन को हमने एमपीएस से ज़रब दिया था, यानी कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसका कुछ हिस्सा जो हमने सेव किया वही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वेयर द डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के स्टैटिस्टिक्स से शो किया. इसे हमने नाम दिया स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर, जो कि इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है. अब इससे पहले अगर सिचुएशन हो विच मीन्स के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेप्रिसिएशन, तो उस केस में सिंस द डेप्रिसिएशन इज़ लेस और इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कम है और कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है और डिस्ट्रक्शन इन अदर वर्ड्स कम है. का मतलब है कि कैपिटल विल ग्रो, एंड दैट इज़ वाई आप देख रहे हैं कैपिटल K1 से K* की तरफ मूव कर रहा है. और अगर हम इस पॉइंट की बात करें K2 की, जहाँ पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब ये है कि तोड़ फोड़ ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन जो है वो कम है. डिस्ट्रक्शन इज़ ग्रेटर दैन कंस्ट्रक्शन, विच मीन्स दैट दे विल बी रिडक्शन इन द कैपिटल. हमारा सरमाया एक्चुअली कम हो रहा है बिकॉज देर इज़ मोर डिस्ट्रक्शन. So that is why you see that there is convergence towards the equilibrium. और ये है gist of the solo growth model जो कि हमें convergence की news देता है. Now this news can be translated in a phase diagram जो हम सीख चुके हैं last lecture में, कि अगर हम इसका phase diagram बनाएं जो कि हमारे पास equation given थी, the very first equation, क्योंकि वो rate of change of capital पे base करती थी, इसीलिए that is a differential equation जिसकी phase diagram हम बना रहे हैं. और उसके अंदर आपने देखा था कि दैट वाज अ फंक्शन ऑफ के ओनली, उसके अंदर टी या कोई और वेरिएबल नहीं था. तो के का रेट ऑफ चेंज दैट गिव्स अस द ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन, या जिसे हम फेज डायग्राम कहते हैं, ये हमने बनाई है उसका डाटा लेकर. और आप देख रहे हैं कि दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर ये मर्जर है, इंटरसेक्शन है और इंटरसेप्ट है एक्स का. यहाँ पर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से कैपिटल की वैल्यू बढ़नी चाहिए. रेट ऑफ चेंज अगर नेगेटिव हो तो कैपिटल की वैल्यू कम होनी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं. तो इट मीन्स कि कैपिटल पर वर्कर जो है कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट की तरफ कि स्टेरिस जो कि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम भी है, जिसे हम यहाँ पर फेज डायग्राम की लैंग्वेज में अट्रैक्टर कहेंगे. तो आपने देखा हमने उस चीज़ को इन दीज टेबल्स टेबुलेट भी किया. और बिफोर एक्स जो है, बिफोर एक्स इंटरसेप्ट दैट वाज के स्टेरिस सिचुएशन थी कि कैपिटल पर वर्कर का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव था और कैपिटल पर वर्कर जो था वो बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज अगर नेगेटिव होगा तो कैपिटल पर वर्कर को कम होना चाहिए और लेफ्टवर्ड मूव करना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस. सो फाइनली वी कैन से कि देयर इज़ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एक्स इंटरसेप्ट, और उसे हमने अट्रैक्टर का नाम दिया उस पॉइंट को. कन्वर्जेंस हो रही है, डायनामिक स्टेबिलिटी है, स्टेबल इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम है, जिसे हम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, जो कि आइडिया दैट वाज देयर suggested by Robert Solow in his growth model. So what we saw is that Solow's growth model can be understood by using this qualitative approach, where the idea given by him of the steady state growth happens and the equilibrium is achieved automatically once the imbalance between depreciation and investment happens. Thank you.